Assalamu alaikum. Well, from a long time, I haven't been recording any videos. I haven't published any videos on the YouTube. I know this myself, mainly because of time constraints. But there has been some other issues as well, which I have been facing. And I don't know if only me, but many people right now are going through it. Many people of my community. The main issue, if I talk about, is what's happening around the world right now. It's in regards to the war, genocide, many things that is happening. Well, the thing is that I haven't had a good mood to shoot or to record a video. I kind of like felt like I was lazy, or maybe you can say that I wasn't in a good mood and I didn't had the enough power or the energy to record a video. You are totally aware about what is happening around the world. The thing is that I can't even take the names. I can't even say some words because my YouTube might be banned. And you know that I have just started the YouTube. I have been given warnings and I have been banned multiple times from Instagram for raising my voice. But the thing is that you will understand what I'm trying to say. And this is the reason, like right now I'm recording in English, because I want my voice to be heard by many people. See, being a person of the same community, I feel a pain in myself and I feel helpless that I'm not able to help them. Even if you may be feeling the same, doesn't matter if you belong to the same community, but at least we all belong to humanity. And that's what the issue is, that being a human, we are not able to help other human, those who are suffering. Small kids are being killed, the women are being killed, the young people are being killed, the teenagers, the adults. Like, I have seen worst of the worst videos which maybe you must have not seen. Because Instagram right now is flooded with it. If you're following the right page, you're following the right accounts, you'll find the truth. Actually, the war is between the truth and the false. And people are struggling way more hard than us. The people over there in the country where the war and the genocide is being held. You can just imagine what they are going through, what they're facing. And it makes me feel upset that I'm not able to do anything for them. I know that many people are doing this boycott thing, or they're raising the voice on the social media, continuously sharing. But of course, I'm not that a big of an influencer, and I won't be able to do that. And even if I do that, it won't maybe make a difference. But I'm still trying my best. Keep on updating it on my Instagram. I keep on updating it on my Twitter. And I'm gonna make sure that I keep on updating it everywhere. I do post it on Instagram. I do post it on Twitter. I do post it on WhatsApp, just to let my people, those who follow me, those who are my friends or the family, should know that what is happening around the world. What makes me really upset to see is that on one side we are seeing a fast paced growth increment in technology, and on the other side we see a gradual decrement in humanity. I feel like we are way more far from what we have to be achieved, or we should have achieved. And this is not only the reason that is making me kind of mood to record the videos. There are multiple things that is going around, like work constraint is also there. As you know that I'm not only a YouTuber, I'm not only doing YouTube, I'm working as an IT professor as well. And the past few weeks the workload has been way too much, so I've been busy with that. Obviously it's good for that. And the main reason I believe is the time constraints and what is happening around the world. It's kind of heart wrenching and you see through it. Just imagine the people who are going through it, how they must be feeling. So, in keeping that mind, I will be like keeping this video, trying to be my best to keep it short and just as a breakdown. Because even I'm not in the mood to actually record from past few
weeks, few months. I know this thing has been around from years even before I was born, but it's happening right now. It's in front of my eyes, and I'm not able to do anything about it. So it does feel as if like I'm helpless, I'm powerless. But at least what we can do is we can stand with the truth. We can make sure that people around us are aware about us, and we can make sure that we are sharing as much as it is possible. We have to share the truth. We have to keep updated. We have to make opinion. And there are many things that we need to do. Like I said, that I won't be able to say the names or the words. Like there are literally few words which have been totally banned from social network. The moment you write the word, even though it's a right word, even though the word has been used previously multiple times for many other things, but if you use those words right now, you will be immediately banned. Me and some of my friends on social media have received multiple warnings and multiple shadow bans, multiple bans, but what? Anyways, with that, let's start our today's video. The very first news we have, oh I'm really sorry, मैं भूल गया एक्चुअली कि मुझे वीडियो हिंदी में बनानी है. तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ हमारे पास है OpenAI की तरफ से. OpenAI वही कंपनी है जिसने चैट GPT बनाया है. वेल 6 नवंबर को उनका एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा था OpenAI DevDay, दैट मीन्स डेवलपर डे. और वो लाइव इवेंट था, यूट्यूब पर भी हुआ था और उनकी वेबसाइट पर, जैसे कि आप मुझ पे यहाँ पर देख पा रहे हो कंप्यूटर पर. और मैंने वो लाइव इवेंट अटेंड किया था, भले वो रात के 11:30 बजे हो रहा था, क्योंकि भाई सैन फ्रांसिस्को में वो हो रहा था सुबह के 10:30 बजे. उस इवेंट में काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की गई है और इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कि GPTs और टर्बो V4. मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चैट GPT का 4 वर्जन टर्बो में आया और इसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो 128 के इंक्रीज कर दिया गया है. मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पूरी बुक हम इससे अपलोड करके और उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड एज वेल एज हम इससे पूरी बुक भी लिखवा सकते हैं. देन फंक्शन कॉलिंग वगैरह चीज़ें ऐड की गई है और बहुत सी चीज़ें इसमें जो ऐसी थी जो डेवलपर्स के लिए थी, तो मैं उसे कवर अप नहीं करूँगा. बट वॉट फॉर इज़ अ कॉमन पीपल लाइक आपके लिए और मेरे लिए, जो कॉमन लोगों के लिए है, वो ये चीज़ें जैसे चैट GPT में अब आपको मॉडल स्विच नहीं करने होंगे. डाल E3 और एडवांस डेटा एनालिसिस और टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब आपको ऐसे चेंज नहीं करना होगा. एवरीथिंग इज इन वन प्लेस, ऑल इन वन टूल जिसे हम कह सकते हैं. आप बस कमांड दोगे कि मुझे इमेज जनरेट करनी है, वो समझ जाएगा कि डाल E3 का मॉडल यूज़ करना है. अगर आप उसे फोटो अपलोड करोगे वो समझ जाएगा कि चैट GPT का विजन मॉडल यूज़ करना है. इसी तरीके से अब हमें बार बार मॉडल स्विच नहीं करना होगा. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वो ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ GPTs अगर हमें आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो ये एक AI एजेंट्स है. हम अपने खुद के कस्टम चैट GPT बना सकते हैं, उसकी कस्टम नॉलेज, उसके कस्टम इंस्ट्रक्शंस के साथ, और उसे हम पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिकली अलाउ कर सकते हैं लोगों को यूज़ करने के लिए, हम उसे इनफैक्ट रीसेल भी कर सकते हैं. इवेंट के एक दिन पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किया था, एंड इन दैट स्टोरी मैंने बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट किया था कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रिलीज़ की जा सकती है हमारे इवेंट पे. ऐसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था, उसमें से कुछ चीज़ें नहीं हुई, बट मैनी ऑफ द थिंग्स हैज़ बिन डन. जैसे मैंने इसका नाम दिया था चैट GPT यानी GPT बिल्डर, बट अनफॉर्चुनेटली उसका नाम चेंज हो गया, वो GPTs कर दिया गया, GPTs. तो GPTs में हम अपने खुद के चैट GPT बना सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी अपडेट्स आए वो सभी चैट GPT प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए. अगर आप प्लस सब्सक्राइबर तो आपको मिल सकता है. जैसे आप जानते हैं अनफॉर्चुनेटली मेरा वो सब्सक्रिप्शन लॉस्ट हो चुका है. वेल एक और चीज़, सैम अल्टमैन ने अभी 10 नवंबर को एक ट्वीट डाला है और उस पर लिखा हुआ है दैट GPTs आर नाउ लाइव फॉर ऑल चैट GPT प्लस सब्सक्राइबर्स. मतलब जो भी अगर आप चैट GPT प्लस यूज़ करते हो तो सभी के लिए अभी GPT अवेलेबल हो गया है, सिर्फ कुछ बेटा यूजर्स के लिए नहीं है. और एक छोटी सी न्यूज़ है चैट GPT की तरफ से कि चैट GPT का एक ट्विटर अकाउंट आ गया है. अच्छा वेल चैट GPT ने रिलीज़ किया, उसी के कुछ वक्त पहले ही इलॉन मस्क, हमारे बिलियनियर भाई, उन्होंने भी एक चीज़ रिलीज़ की है, वो है ग्रॉक, GROK.
ये एलॉन मस्क का यानी XAI का अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस एआई की खास बात ये है कि इसमें कोई नॉलेज कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब ये हमारे यूजर्स के ट्वीट्स पर ट्रेन हुआ है एंड इट इज़ वेरी विटी। मतलब इसका ह्यूमर काफ़ी एलॉन मस्क जैसा ही मैच करता है। बट इतना बता दूं ये फ्री नहीं है। इसे यूज़ करने के लिए आपको एक्सी यानी ट्विटर की प्रीमियम मेंबरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास ह्यूमेन की तरफ से। मैं इस कंपनी पर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए ही था एंड आई वाज एक्चुअली होपिंग कि ये कुछ ऐसा रिलीज़ करे, बिकॉज ये हमने पहले टेड टॉक के शो में देखा था जिसमें इमरान जो कि इसके आई थिंक ओनर है, उन्होंने ये वहाँ पर सिर्फ एक डेमो शो किया था। AI पिन है क्या? लेट मी शो यू। AI पिन इज लाइक एक छोटा सा डिवाइस है जो हमारे यहाँ पॉकेट पर लगा होगा। हम यहाँ पर इसे स्टिक कर सकते हैं थ्रू द मैग्नेट, और ये ओपन एआई से पावर्ड है। ये इसमें आपको कोई टच स्क्रीन नहीं मिलती है। ये आपको जो डेटा है वो लेजर के थ्रू अपने हाथ पर इस तरीके से वो आपके यहाँ पे शो करेगा। इट विल जस्ट शो इट एज एन होलोग्राम, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो लिटरली हमारी फिंगर सेक्शन से, जो आजकल स्मार्ट वॉचेस में निकला है ऐसे करने पर। और ये पूरा एआई पावर्ड है। दैट मीन्स कि हम इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये हमें आंसर करेगा। हम इससे नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कैमरा भी, मतलब GPT-4 विजन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे कि हम बस इसके सामने कोई चीज़ रख सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं एंड इट विल जस्ट आंसर यू। इट विल ऑल्सो हेल्प यू ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसलेशन वगैरह के लिए भी बहुत मदद करेगा। ये लाइव कन्वर्जेशन को ट्रांसलेट करके आपको हेल्प कर सकता है ताकि आप किसी दूसरे पर्सन से बात कर सको। और साथ ही साथ इसमें स्टोरेज भी है, इसमें सिम कार्ड जैसे हम कहूँ, मतलब कि सेलुलर डेटा भी अवेलेबल है। मैनी थिंग्स आर देयर। मैं सजेस्ट करूँगा आप इसकी वेबसाइट पर जाइए hu.ma.ne/AI पिन, यहाँ पर आप जाकर के देखिएगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इसके ये रिलीज हो चुका है, मतलब ये अभी परचेज के लिए अवेलेबल है और इसका प्राइस है $699। बट साथ ही साथ हमें इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लेना होगा। दैट इज़ फॉर द स्टोरेज एंड दैट इज़ फॉर द सेलुलर डेटा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। ये है अल्पाका की तरफ से। आई नो मैंने अल्पाका कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आपको, बट अल्पाका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने खुद के मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं और उसी से हम इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। उनका ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट के दे आर लिविंग द बेटा, मतलब ये बेटा वर्जन से बाहर आ चुका है और कुछ फीचर्स है जो अभी फ़िलहाल सभी के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़, RunwayML। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैंने 2-3 बार इसे यूज़ किया, वैसे उसके बाद ज़्यादा यूज़ करने का मुझे वक्त भी नहीं मिला। बट RunwayML ने मोशन ब्रश नाम का एक न्यू फीचर ऐड किया है। इससे देखिए हम क्या कर सकते हैं। यू कैन जस्ट लुक एट माई कंप्यूटर नाउ। आप सिर्फ अपने नॉर्मल जैसे सिलेक्शन करते हैं ना फोटोशॉप में, बिल्कुल वैसे करना है और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। दिस इज व्हाट मोशन ब्रश विल डू। यू कैन सी दिस ओवर हियर। फिर लास्ट अपडेट की तरफ आते हैं। ये है फॉर्मलेस की तरफ से। फॉर्मलेस मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं इसे बहुत यूज़ कर रहा हूँ। फॉर्मलेस का जो अपडेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इसके लिए काफ़ी वेट कर रहा था, वो ये है कि एम्बेडेड कोड और पॉप ओवर विजेट। मतलब अगर हम फॉर्मलेस के थ्रू AI फॉर्म्स बनाते हैं, हम उसे अपनी वेबसाइट्स में, अपने किसी प्लेटफॉर्म में एम्बेड कर सकते हैं और वो पॉप अप विजेट बन जाएगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट और वो आपके वेबसाइट पर एक AI फॉर्म आ जाएगा। Well, these were the news, but you know that I'm not in the mood to record the videos. You must have felt कि मैं वीडियो सही से रिकॉर्ड भी नहीं किया हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन द मूड इन दैट। ऐसे तो न्यूज़ बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। आई होप टू गेन द एनर्जी बैक एंड आई होप फॉर ऑल द थिंग्स टू बी सॉल्व्ड, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि भाई हमने जो चीज़ें पढ़ी है और हमने जो चीज़ें सुनी है उस हिसाब से अगर चीज़ें सॉल्व भी हो जाए तो भी बुरा होगा। I hope you understand what I mean. Some of the people who are listening to me must understand, will understand in fact कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें जो हो रही है अगर वो रुक जाए, वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा।
I don't know what's gonna happen, but let's just hope for the best, and I hope that I regain my energy, and I hope that I regain a good mood to be back on this. But anyways, एक चीज़ ये है कि मैं इंस्टाग्राम पर कंस्टेंटली स्टोरीज पोस्ट करता रहता हूँ, लाइक पोस्ट रील्स वगैरह भी करता रहता हूँ, सो दैट आई कैन कीप माई पीपल अपडेटेड. आई कीप इट ऑन ट्विटर, आई कीप इट ऑन माई व्हाट्सएप, सो दैट मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मैं अवेयर रख सकूँ एआई के बारे में और जो दुनिया में हो रहा है उसके बारे में. द थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी, मैं उस बारे में कंस्टेंटली पोस्ट करता रहता हूँ. मुझे कई सारे ईमेल्स भी रिसीव होते हैं अबाउट न्यूज़ एंड ऑल, तो मैं भाई ईमेल से ही देख करके बस आप लोगों को सही एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. एंड द मेन रीज़न आई मेक वीडियोज़ इन हिंदी लैंग्वेज इज जस्ट दैट कि आपको बेहतर मैं समझा सकूँ. बट एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.